بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حوالے پنڈی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم ریاض۔ ناظرین، آج ہم لوگ جو ہے وہ راجہ بازار میں موجود ہیں اور آج ہم لوگ آپ کو بتائیں گے، چونکہ ایک طرف رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں بھرا مہینہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ کرونا کی جو تیسری لہر ہے وہ بڑی شدت اختیار کر چکی ہے۔ راول پنڈی شہر کے اندر جو ہے وہ کیسز میں جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے گزشتہ 24 گھنٹوں کی، تو ان 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ راول پنڈی میں جو کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں کرونا کے، ان میں 1021 کیس جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اور اگر اموات کی بات کی جائے تو 7 جو ہیں وہ اموات راول پنڈی شہر میں کرونا کی وجہ سے جو ہیں وہ ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم لوگ راول پنڈی شہر میں موجود ہیں، ایک بڑی مارکیٹ میں ہم لوگ موجود ہیں۔ ہم لوگ چلیں گے یہاں پہ، لوگوں سے بات کریں گے، اور اسپیشلی یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے کہ راول پنڈی کی جب اگر بات کی جائے تو رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، لوگوں نے عید کی خریداری بھی کرنی ہے، اور لوگ جو ہے وہ جوک در جوک مارکیٹوں کا رخ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو وہیں پر ہم لوگ دیکھیں گے کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بتائی گئی احتیاطی تدابیر پر جو ہے وہ کتنا زیادہ لوگ عمل پیرا ہیں۔ جو خریداری کے لیے آ رہے ہیں، کیا وہ عمل کر رہے ہیں، اور وہ جو دکاندار ہیں اسپیشلی وہ دیکھیں گے ہم لوگ کہ وہ کرونا ایس او پیز پر کتنا زیادہ عمل پیرا ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہم لوگ اپنے اس پروگرام میں آج آپ کو دکھائیں گے۔ ہمیشہ کی طرح مجھے چاہیے ہوگا آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ خالی ایک ہم تینوں پر نہ نظر ڈالیں۔ آپ نے اس پورے بازار میں کتنا سارا وزٹ کیا ہوگا۔ 99% جو لیڈیز ہیں، 99% جو دکاندار ہیں، ٹھیک ہے، کسی نے بھی نہیں پہنا ہوا۔ ایک لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سانس کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے پہننے سے، ٹھیک ہے، 99% لوگوں آپ کو بھی سانس کی پرابلم ہے؟ بس سانس کی پرابلم نہیں ہے، بس یہ ہے کہ الجھن فیل ہونے لگ جاتی ہے نا۔ کبھی ایسی چیز کو یوز نہیں کیا۔ دیکھیں، جب ہم ایسی چیزوں کو یوز کرتے نہیں ہیں نا، جو چیز ہم نہیں کرتے نا، اس کو کریں تو بہت مشکل ہوتی ہے سیٹنگ کرنے کے لیے۔ تو یہ بتائیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہوا آپ کے ساتھ، لیکن وینٹیلیٹر سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اگر گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے اگر ماسک کا استعمال کریں گے تو مشکل سے بچ جائیں گے؟ تو سر، آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات کا جواب دے سکتے ہیں؟ کیا اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ماسک پہننے سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ یہ تو رب کے قانون ہے نا۔ دیکھیں، جس نے جانا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یعنی کہ ہم لوگوں نے ساری بات جو ہے اللہ پہ ڈال دینی ہے، ایمان جو کچھ کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، اور ہم لوگ بے شک ماسک پہن لیں پھر بھی کرونا ہو جائے گا۔ بھی ہونا ہوا تو ہو۔ کہ آپ کے نزدیک یہ بات ہے، ڈن بات ہے، اس میں کوئی نیم و بدل نہیں ہے اس بات کا۔ دیکھیں، یہ میرے رب کا قانون ہے، ٹھیک ہے۔ جو صحیح سلامت بندہ کھڑا ہے نا، فرض کرو وہ ایسی ہارٹ اٹیک سے چلا گیا، کرونا سے نہیں گیا، لیکن ماسک تو اس نے بھی پہنا ہوا تھا، لیکن وہ چلا گیا نا۔ بات مان بھی لی جائے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، مانتے ہیں، ہر بندے کا یقین کامل ہے کہ اللہ رب العزت ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا ہے کہ علاج جو ہے وہ سنت نبوی ہے؟ اس کو کیوں کہا ہے؟ لیکن میں آپ کی چھوٹی سی بات بتاؤں، میں کچھ دن پہلے میری بانجی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈیلی بیسس پہ ہاسپٹل آنا جانا تھا۔ وہاں پہ 75% جو پیشنٹس تھے، ڈاکٹرز تھے، جو یعنی کہ وہاں کے آنے جانے والے جو پیپلز تھے نا، کسی نے بھی نہیں اس چیز کو فوکس نہیں کیا۔ سرن بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی غلطی ایڈمٹ نہیں کرنی ہے، اور آپ نے ساری باتیں ہاسپٹل پہ، دوسرے لوگوں پہ، دیگر لوگوں پہ، اور آخر میں بات جو ہے وہ اللہ پہ ڈال دینی ہے۔ ماسک نہیں پہننا آپ؟ چلیں، آپ کہہ رہے ہیں سر، فورس کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا آپ کو، دیکھیں تو ہم ٹرائی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ہمارے لیے کوئی اچھا وسیلہ بنا ہو، اللہ نے آپ کو ہمارے لیے پیغام کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہو، تو ہم انشاءاللہ فل کوشش کریں گے کہ اپلائی کریں۔ باقی رب میں امید رکھوں کہ آپ ماسک جو ہے وہ منگوا کے پہنیں گے انشاءاللہ گھر اصل میں منگانے کا رولا نہیں ہے، ہمارے گھر میں بہت سارے پڑے ہوئے ہیں، تو ابھی آج 6 بجے چھٹی کریں گے، ہم پاکٹ میں ڈال لیں گے، اپنی ڈیلی بیسس پہ کپڑے چینج کرتے ہیں، سب سے پہلے ماسک نکال کے اس میں ہم پاکٹ میں ڈالا کریں گے۔ بھائی نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کیا ہے جی، اب یہ ماسک جو ہے وہ پہنیں گے، اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو شہری خریداری کے لیے آ رہے ہیں وہ بھی عمل درآمد جو ہے وہ کم ان میں بھی نظر آ رہا ہے، تو شہریوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ماسک پہنیں، اور کرونا کی جو ایس او پیز ہیں ان پر جو ہے وہ ہاسپٹل کا جو علاج ہے اس سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شاپ کیپر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جی کہ کیا صورتحال ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ معذرت کے ساتھ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ماسک
लहर में आगे मर करना चाहते हैं लोग, ऐसा क्यों मतलब है कि इतनी जो है वो हठधर्मी लोगों में क्यों है कि हम लोग अगर अपनी खुद ही एहसास नहीं करेंगे जिम्मेदारी का तो कैसे ये मामला जो है हम लोग कैसे कोरोना को शिकस्त देंगे? सर कोरोना का शिक्ष देने के लिए सिर्फ एक है जो हमारे यहाँ के मेन सरबराह है। जैसे कि कोई भी आप ले लें, एक घर का एक बाप होता है, आगे उसकी औलाद है, अगर बाप वो मास्क पहनेगा तो औलाद भी उसकी सारी पहनी होगी। हमारे जो मेन ओनर्स हैं ना, वो उस चीज़ की एसपी की जो उनसे ना वो नहीं कर रहे। अच्छा ये बता दें कि अगर खुदा न ख्वास्ता यहाँ पर अमल पैरा नहीं होता, जैसे अभी हम लोग भी प्रोग्राम कर रहे हैं, टीवी पे ऑनर हो गया, इंतज़ामिया देखेगी, मैंने डीसी साहब से भी पैचअप किया हुआ है, अगर मेरा उनसे टाइम हो जाता है तो मैं उनसे भी बात करूँगा। तो कल कला अभी मैं नमाज़ पढ़ गया हूँ 1200 आदमियों के अंदर जोर की, ये साथ जुड़े होकर पढ़ गए। जो टाइम मुकर्रर है वो मुकर्रर है। इधर आप मीडिया की आदमी कि हम लोग मानने को तैयार ही नहीं नहीं तैयार है, कोरोना कुछ नहीं है, कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। मेरे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। हम क्या कहेंगे, हमने देखा कि ये जितने भी यहाँ पे ठिये लगे हुए हैं, जितने भी, ठीक है, किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ। ठीक है। और दुकानदारों ने, हम अगर बात की जाए तो कुछ दुकानदारों ने पहने हैं, जैसे कि आपने पहना हुआ है, दीगर दुकानदारों ने पहने हुए हैं। पीछे भी हमने मार्केट का विजिट किया। क्यों हम लोग जो है वो इसको मजाक में ले रहे हैं? हमें अपनी ज़िंदगियों से प्यार नहीं है या अपने प्यारों की ज़िंदगियों से प्यार नहीं रहा, या हम लोग जो है वो कौम नहीं बन पाए? सर बात ऐसी है ना, ये हमारी आवाम ऐसी है ना, वो कहते ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये कोई एहतियात नहीं, ये खुदकुशी की जद में आ जाता है। ठीक है, ये खुदकुशी है, ये नहीं है कि ये ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, देखा जाएगा जो होगा। इसमें कुछ नहीं देखा जाएगा। देखिए बीमारी है ना, परहेज़ करना है, ये कोई परहेज़ नहीं है। ठीक है, मास्क मस्ट है, SOPs पे कोई अमल नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी हम लोग SOPs पर अमल नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फिर जब इंतज़ामिया हरकत में आएगी तो तमाम कारोबार ठप कर दिए जाएंगे, बंद हो जाएंगे, सील कर दिए जाएंगे इलाके। फिर हम लोग कहेंगे, सुन ले मेरी बात, फिर हम लोग कहेंगे जी हमारा कारोबार तबाह हो गया, हमारे घर अफाके आ गए हैं। तो अगर हम लोग अमल पैरा ही नहीं होंगे तो इंतज़ामिया क्या करें? सर बात ऐसे है ना, कारोबार तो बात की बात है, अगर हम SOPs पे अमल नहीं ना करते तो कुछ अरसे बाद हमारी जो हालत है ना वो भारत जैसी हो जाएगी। भारत में लकड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं, वो उनकी वो डेड बॉडीज़ को जलाने के लिए। ठीक है, इधर भी वैसी हालत होने वाली है अगर हम SOPs पे अमल नहीं करते। ठीक है, ये अल्लाह ना करे, ये सबसे पहले है। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में आने। ठीक है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। खान साहब भी कहते हैं एहतियात ज़रूरी है, एहतियात सबसे पहले ज़रूरी है जी। क्यों लोग एहतियात करने पर राज़ी नहीं है, क्या वजह है? सर इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आगाही नहीं है। ठीक है, कि ये कोरोना क्या है, वो कहते हैं जी खांसी है, ठीक है ये ख़त्म हो जाएगी, ये इन्होंने ऐसी प्रोपोगंडा बनाया हुआ है जी। ये आगाही नहीं है आवाम में कि ये भाई कोरोना है क्या, ये बीमारी क्या है। सबसे पहले तो उन्हें ये समझाना पड़ेगा ये है क्या, सबसे पहले हमें उन्हें ये आगाही देनी पड़ेगी। ये भाई की आपने बात सुनी है, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि हम लोगों को जो है वो जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए। अगर हम लोग कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे तो हालात जो है वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम लोग वेंटिलेटर पे जाएं तो हम इंतज़ामिया हरकत में आएगी। वो ज़्यादा बेहतर है, उन्हें करना चाहिए। ज़िला हुकूमत से हमारा भी ये लानी है, वो कहते हैं, हम कहते हैं खुद हरकत में आए, ये काम 1-2 चक्कर लगाएं। गवर्नमेंट का अदारा कोई आता ही नहीं है इस काम के लिए, अभी तक तो कोई अवेलेबल नहीं हुआ यहाँ पे अदारे के लिए, वो आए यहाँ पे। हाँ, ये कहना है कि कोई भी ज़िले इंतज़ामिया का बंदा, कोई पुलिस का बंदा, कोई लोग यहाँ पे आए नहीं कि जी SOPs के ऊपर अमल। नहीं कोई भी नहीं आया अभी तक। ये चीज़ जो ये नई ऑफिस भी आई है, जो दोबारा भी ऐलान हुए, उसके अभी तक तो किसी ने यहाँ पे नहीं करा। हाँ, साइड कमर्शियल मार्केट होगी, इस्लामाबाद हो गए, उधर ये काम चल रहे हैं, इधर अभी ये नहीं, इसीलिए लोग ये लापरवाही कर रहे हैं, इन पे जोर नहीं दिया जा रहा। नाज़रीन मेरे साथ एक शॉपकीपर मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछेंगे मास्क इन्होंने पहने हुए हैं, इनसे पूछेंगे दीगर मार्केट की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या कहेंगे, हमने देखा यहाँ पे जितने भी बाइट ये लगे हुए हैं किसी ने भी मास्क नहीं पहना, क्यों हम लोग बेहिस हो चुके हैं? बेहिस हमें देखें, अभी जो पोजीशन हमने अभी देख लिया है, ये अल्लाह की ख़ास रहमत है हमारे पे, जो अभी तक हम बचे हुए हैं। क्यों? ये सिर्फ रमज़ान की बाबरकत वजह से हम बचे हुए हैं, अदरवाइज़ जो हमारे अमाल है बचने वाले नहीं हैं। इंडिया में जो मामलात हो रहे हैं सारी दुनिया देख रही है, ये अल्लाह की पकड़ है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह से माफ़ी मांगे और इस मामले को जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है, पाक आर्मी कह रही है, उसके अमल करना चाहिए। हम नहीं अमल कर रहे हैं, हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। जब किसी घर में से एक बंदा जाता है तो 1 साल तक दुख नहीं भूलता। मेरे घर में से एक बंदा कोरोना में से पेशेंट फौत हुआ है, मुझसे पूछें, अभी तक नहीं है, भूला नहीं जाता बंदा। आप इस कुर्ब से गुजरे हैं, मुझे ये बताएं कि ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे जो लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कोरोना है? आज भी लोग कह रहे हैं
अभी हमने कुछ देर पहले एक बंदे से बात की, वो कहता है जी कोरोना है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया पागल तो नहीं बैठी यार, इतनी दुनिया में मीडिया बैठी है, पूरी दुनिया वर्ल्ड आपका बैठा है। तुर्की अब बंद हो गया, 29 को कह रहा है, सदर उसका कह रहा है, इतना नाइस आदमी है वो तुर्की का सदर, उसने दुनिया अपना मुल्क बंद कर दिया। तो मैं तो कहता हूँ अगर ये हालात रहेंगे तो ऑब्वियसली इसको बंद करें। मैं इस हक में नहीं हूँ, कारोबार तजारत को नहीं, इंसानी जानों की ज़रूरी है। किसी घर में एक बंदा मर जाए, उसके घर में क्या माहौल होता है वो देखें। कारोबार को मैं ये नहीं कहता कि कारोबार पैसा सब कुछ नहीं होता, अपनी जान और सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इस बारे में मैं आपको यही आप मीडिया वाले आए हो, यही कहना चाहता हूँ कि ये भाई इसको सीरियस लें, बल्कि मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ इसको सीरियस लें, अगर नहीं कोई सीरियस लेता है इसको बंद करें। बहुत अच्छी बात इन्होंने की है जी, ज़िले इंतज़ामिया को स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि अगर जो लोग अमल पैरा नहीं है तो बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया जाए और मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए, ताकि जिस तरह से भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि पैसा ही जो है वो सब कुछ नहीं है, इंसानी जो जान है वो बहुत ज़्यादा कीमती है और हम लोगों को इस पर जो है वो देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम लोग जो है वो इस पर अमल पैरा हों ताकि इस कोरोना वबा को हम लोग शिकस्त दे सकें। कुछ शॉपकीपर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये 4-5 लोग यहाँ पे भी खड़े हैं, इनमें से भी किसी ने मास्क जो है वो नहीं पहना। भाई मेरे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। वजह है भाईजान, हम लोग कब कौम बनेंगे, कौम कब बनेंगे हम लोग कब जो है अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करेंगे कि हम लोग जो है वो जिम्मेदार होने का सबूत दें, ताकि ये जो वबा है हमारे मुल्क को इसने अपनी लपेट में लिया है, इससे हम लोग जो है वो आज़ादी आ सकें। बात ये भैया, अगर नाराज़ ना हो तो एक बात करूँगा, वो सच है लेकिन होगी थोड़ी सी कोड़ी कड़वी इसलिए होगी कि कानून नहीं है। कानून बना देना, इस रोड पे सिर्फ 10 पुलिस वाले एहलकार ना खड़े करें, 2 खड़े कर दे रोडों के ऊपर ना, जो मास्क ना पहने उसको 100 रुपये जुर्माना करेंगे। वो कहेगा यार 10 रुपये का मास्क है, 100 रुपये जुर्माना है तो मैं खुद पहनूंगा। ये हम उधर से पुलिस वाले डाले वाले आते हैं, हम उठाते हैं, दुकानें भाग जाते हैं, वो चौक में पहुंचते हैं, हम फिर लगा लेते हैं। मास्क का कानून बनाया, हेलमेट का कानून बनाया था, बस कहाँ गया आप वो भी? ओ भाई मेरे महकमा नहीं, गवर्नमेंट नहीं ना सही। गवर्नमेंट सही हो तो आपकी क्या जरूरत है ये इसकी, या मेरी क्या जरूरत है मास्क ना पहने। हर चौक में 2-2 पुलिस वाले खड़े होते हैं ना, वार्डन वाले, कापी चेक करते हैं, चलान करते हैं, तो वो मास्क पे 50 रुपये जुर्माना कर दें। मैं कहूँगा यार 50 इसको दे दिया तो 10 का मास्क पहने ना। कानून नहीं है इधर, आपके लिए और कानून है, मेरे लिए और कानून है, इसके लिए और कानून है। टीवी पे कानून बना देते हैं, खबरें छाप देते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। सारी बात हम लोगों ने इंतजामिया पे डाल दी है, लेकिन हम लोग कब जिम्मेदारी का एहसास? हम लोग तो वो बीन बजाने वाली बात है। हम पहले कहते थे जरदारी सही है, फिर जरदारी चला गया, फिर कहते थे नहीं यार मुशर्रफ सही था, फिर कहते नहीं नवाज शरीफ सही है, फिर आप कहते हैं हम नया पाकिस्तान बनेगा। नया पाकिस्तान में उसने ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया है कि 180 वाला घी 280 रुपये में चला गया। ठीक है, रोज़ाना सुबह उठे मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, हम महल्ले में रात को जाते हैं, उधर भी कई मकानों से लड़ाई होती है। पहले में आटा लाता था, 10 दिन निकलता था, यानी वो बेड़ा गर्क किसने कर दिया? अवाम तो नहीं सही होगी, अवाम के ऊपर आना चाहिए हमारा वो अहले सुन्नत वाला इमाम खुमैनी जैसा बंदा। नमाज फजर जब अदा करे ना, उसके बाद एक खिलौनों वालों को जो टूटे बेचते हैं फारा चौक में फांसी दे दे, एक डॉक्टर को पकड़े, एक कपड़ों वालों को पकड़ ले, एक मोची को पकड़े, 10 बंदों को फारा चौक में फांसी होगी ना, तो हम सब इंसान के बच्चे बन जाए। हम डंडे वाली कौम है, हम वो कौम नहीं है कि भाई मास्क पहनो, बीमारी आ जाएगी, हाथ दो, फासला रखो। नहीं, हम डंडे वाली कौम है। जब तक डंडा नहीं चलेगा ये मास्क नहीं चले। ये बात करने के लिए मास्क क्यों बेटा? अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा बुजुर्गों को भी नहीं आना चाहिए। आप बात कर रही है ना, किधर नहीं आना चाहिए? रोजाना कहते हैं उमर असगर कहता है, उमर असगर का क्या नाम है उसका? उमर असद उमर शेख रशीद, अच्छा असद उमर, वो रोजाना कहता है 6 फुट का फासला रखें। 60 साल वाले बुजुर्ग ने बच्चे देखो, बच्चों को भी ला रही हैं, हमारा भी बेड़ा गर्क कराएंगी ना। बाजार सील होगा माँ जी, ये देखें ना, ये किसी का बच्चा बाजार में घूम रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अनवर हक साहब के ऑफिस में। देखें, कोरोना की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी प्रिवेंशन है, और जो पॉसिबल है उसमें 2-3 चीज़ें जो आपने जैसे बात की, मास्क का पहना, सोशल डिस्टेंसिंग है, और हाथों को फ्रीक्वेंट धोना। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं और जो हर बंदा खुद कर सकता है। मगर है बड़ा अनफॉर्चुनेट कि कई जगहों पे तो हमारी कंप्लाइंस बेहतर है, जो कंपैरेटिवली बड़ी मार्केट्स हैं, जैसे सदर हो गया, कमर्शियल हो गया। मगर राजा बाज़ार हमारा एक बड़ा एक क्रिटिकल इशू है, और यही वजह है कि शायद हम बहुत कामयाब नहीं हो रहे थे। तो आज
हमारा पहला दिन था, आर्मी भी हमारे साथ थी, हमने आज फ्लैग मार्च किया और उन सारे एरियाज़ में किया लोगों को एक आप समझें कि अवेयर करने के लिए कि सिचुएशन जब आर्मी आपको पता जाता है तो एमरजेंसीज़ और फ्लड और ऐसे डिज़ास्टर्स में आती है इन एड ऑफ सिविल पावर। बट अगर ये पीस टाइम में हमारे पास आई है तो इसका मतलब है ये जो पेंडेमिक है कोरोना की, ये भी एक डिज़ास्टर ही है। और लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें की। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो एरिया हमारा क्रिटिकल है, उसमें हम अभी तक भी हम कंप्लायंस को बेहतर करने में कामयाब नहीं हुए। जो प्यूनिटिव एक्शन है वो हम डेली लेते हैं। हमारे पास आजकल जो है जैसे मार्केट का क्लोजर 6 साढ़े 6 बजे तक 6 बजे तक है और 6:30 तक 35 तक अफ्तार हो जाता है 40 तक। तो हम उसके बाद अफ्तार के फ़ौरन बाद जो चीज़ें खुली होती हैं हम उनको सील करते हैं, फ़ाइन करते हैं और काफ़ी ज़्यादा हमने मल्टीपल सीलिंग है। उसके अलावा लोग हमने अरेस्ट काफ़ी किए। इवन कल सिंगल डे पे हमने मोर देन 100 बंदा हमने अरेस्ट किया। 100 पे ब्रेक इस वजह से लगाते हैं कि जब 100 से ज़्यादा करें तो थानों में इतनी जगह नहीं है। बट बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो हमें जो रिस्पांस लोगों को खुद होना चाहिए, जो आगाही उनको खुद आना चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ही कम है। ये सब ये बताइएगा कि हमें यहाँ पे लोगों ने ये भी शिकवे शिकायत की है कि दुकानों के बाहर जो तजावज़ात माफ़िया है उसकी बड़ी मरमार है, जिसकी वजह से जो रोड्स काफ़ी ज़्यादा खुले हैं तो बंद है, उसकी वजह से रश होता है, लोग जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा धक्कम पेल का जो इशू है। तो लोगों ने हमें ये भी यहाँ पे शिकवे शिकायत की है कि कमेटी वाले जो हैं वो भी इस पर एक्शन लें। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हम लोगों को मिलकर करनी पड़ेंगी। इसमें आपका रोल है, ज़िले इंतज़ामिया का रोल है, मीडिया को भी इसमें रोल प्ले करने की, और जो दूसरे इदारे हैं हमारे मुतलका स्पेशली हमारी पुलिस भी। हमें यहाँ पर हमने जब लोगों से बात की, ताजरों से बात की, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल कुछ लोगों ने आपके जो इनिशिएटिव है उनको बहुत ज़्यादा सराहा भी है। उन्होंने कहा जी हमें ज़िले इंतज़ामिया का साथ देना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हमें मिले जो ये कह रहे हैं कि कोरोना है ही नहीं। देखिए ये तो ओवरऑल अवेयरनेस की बात है ना इसमें, और ये अनफॉर्चुनेट इस वजह से है कि हमारे भी लोग ऐसे हैं कि जो इस बात को एक बड़ा एक नॉर्मल सा समझ रहे हैं। मैं पिछले दिनों गया भी था, बल्कि 2 दफ़ा जा चुका हूँ। रिसेंटली मैं दोबारा गया था कोरोना वार्ड जो हमारी RIU है उसके अंदर, और जाने का सिर्फ यही मकसद था कि लोगों को हम अवेयर करें कि लोग किस सिचुएशन में हैं, और लोग वाकई बड़े ज़्यादा क्रिटिकल हैं। सांस आपको नहीं आ रहा होता और आप ऑक्सीजन, आप खुद देखें कि हमें 100 बंदों के लिए आजकल 8000 लीटर ऑक्सीजन चाहिए पर डे में, और हमारे पास इस टाइम 300 बंदे हैं और हमें 24,000 लीटर ऑक्सीजन उनके लिए चाहिए, और हमारे पास कुछ 6,000 लीटर ऑक्सीजन सिर्फ रिजर्व होती है। बैकअप हमारे पास 6 घंटे का होता है। तो ये कितना सिस्टम पे कितना स्ट्रेस है। तो छोटी छोटी जो चीज़ें जैसे प्रिवेंशन का है, अगर हम ये खुद करें, मास्क पहने और अपने आप को दूर करें, तो हम इजीली जो सिचुएशन हमारी हॉस्पिटल में है, और जो इंडिया में इवन देखें, आपने देखा होगा कि मोर देन 2800-3000 बंदे डेली उस जगह पे मर रहे हैं। तो इसका मतलब ये ड्रामा तो नहीं है, ये तो ये चीज़, ये वबा तो पूरी दुनिया में टेस्ट हो रही है, बड़ी ओरिजिनल है। और हमारा जो ये हर जगह पे ऐसा नहीं है, कई जगहों के ऊपर जो कंपैरेटिवली जो इलाके, जैसे आप सदर में जाएं, जैसे आप कमर्शियल में जाएं, रश तो उस जगह पे भी होगा, मगर कम से कम लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है। पर जो हमारा ये जो थोड़ा सा स्लम्स हैं, या जो हमारी जो मेन ये हमारी होलसेल की मंडी है राजा बाज़ार, इसमें अनफॉर्चुनेटली बड़ा हो गया। इसमें वो जो जिस सीरियसनेस को हमें लेके आना चाहिए वो भी तक नहीं है, और हम इसमें कोशिश कर रहे हैं। हमने इवन मास्क के अंदर हमने ऐलानात करवाए हैं। हमारे जो हेल्थ टीम्स हैं वो जाके लोगों को एजुकेट करती हैं, और आज तो हमने मेगाफोन पे काफ़ी अनाउंसमेंट्स करवाई ताकि लोगों को हम इसको दोबारा एक सीरियसनेस की तरफ लेके आएँ कि कितना इंपॉर्टेंट है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, ये बताएं कि राजा बाज़ार के हवाले से आपने खुद भी बात की कि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ऐसा बाज़ार है, राजा बाज़ार के पूरे रावलपिंडी की आवाम जो है वो इसी तरफ जोर देती है, और रमज़ान मुबारक का आपको पता है कि दूसरा आशरा चल रहा है। तो क्या कोई ऐसे इनिशिएटिव लेने जा रही है ज़िले इंतज़ामिया या आप लोगों की जानिब से? अभी भी आपने कुछ AC साहब के साथ जो है वो मीटिंग्स की हैं, तो इस हवाले से आपका कोई फोकस है कि इन लोगों के ऊपर जो है वो थोड़ी सख्ती की जाए, या इन लोगों को मज़ीद अवेयर किया जाए, ताकि ये कोरोना की वबा जो है इससे हम लोग जो है वो छुटकारा पा सकें? देखिए अभी तो हमारे पास लास्ट रिजॉर्ट है कि सॉफ्ट इंटरवेंशन तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, सच हम उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेंकली स्पीकिंग हम कामयाब नहीं हुए। अभी तो हम हार्ड चीज़ें कर रहे हैं कि हमने रात को कोई अराउंड 100 बंदा अरेस्ट किया था अभी बाड़ा में, और जो मोती बाज़ार है इसमें हम एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे। तो भी हम तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि जो बंदे वायलेशन करें उनको अरेस्ट करके बंद कर दें, और
رمضان میں سخت چیز ہے مگر شاید ہمیں اس کے بغیر گزارا ہمارا پاسبل نہیں ہے. پہلے ہمارے ریسٹ کم ہوتی تھی 10-15 بندے, اور پچھلے دنوں سے ہم 100 ٹچ کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس طرح کے کوآپریشن چلتے رہے تو یہ لیول آف امپلیمنٹیشن تبھی ٹھیک ہوگا. میسج کیا دینا چاہیں گے؟ میں تو بالکل ایک ہی میسج دینا چاہوں گا جی, دیکھیں جی کہ ہمارے دین کے اندر ہی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, اور صفائی یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہم کیسے صاف رکھ سکتے ہیں. اور صاف رکھنے کا دیکھیں سب سے امپورٹنٹ طریقہ ہے, اور اگر ہم اپنے جسم کی صفائی رکھتے ہیں تو ہم کرونا سے بھی بچاؤ پاسبل ہے. دیکھیں سب سے پہلے ہے ہاتھوں کو بار بار دھونا. ہاتھوں کو اگر ہم چہرے کو دھوتے ہیں تو کم از کم یہ ہے کہ اس سے سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے. ساتھ ماسک کا پہننا ہے. اگر ماسک ہم پہن لیتے ہیں تو ہم کافی مطلب جو مین اسٹڈیز آپ باہر کے ملکوں کی دیکھ لیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بھی ماسک پہنتے ہیں یہ سب سے ایک افیکٹو چیز ہے, ہاتھ کے بعد ماسک دھونا. اور تیسرا سوشل ڈسٹینسنگ. اگر ہم اپنا ایکسپوئر اگر ہم کسی کے قریب ہمارا ڈسٹینس کم ہوتا ہے تو اس کو منیمائز کر سکیں, اور 2 میٹر کا اگر ہم ڈسٹینس رکھ لیتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس وبا سے ایزیلی بچا جا سکتا ہے. اور اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بالکل پرووڈ ہیں, امپیریکل ایویڈنس اس کا ہے کہ یہ اگر آپ تینوں چیزیں کریں تو آپ اس وبا سے بچ سکتے ہیں. تو آئی ووڈ ریکویسٹ کہ آپ کے چینل کی توسط سے کہ لوگ اپنا ایکسپوئر جو ہے ایک تو لوگوں کے ساتھ وہ کم ہو, اور دوسرا اگر آپ کا ڈسٹینسنگ ہے سوشل ڈسٹینسنگ وہ 2 میٹر ہونی چاہیے, اور تیسرا ماسک پہنیں. اور ہاتھ جب بھی آپ ملاتے ہیں کسی سے یا کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو اس کو عام صابن کے ساتھ, اگر آپ کے پاس وہ سینیٹائزر نہیں بھی ہے تو عام صابن کے ساتھ اگر ہم اس کو دھوتے ہیں تو اس وبا سے ایزیلی بچا جا سکتا ہے. آخر میں ناظرین ہم نے اپنے پروگرام کے ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائر انوار الحق صاحب سے بات کی. ان کا کیا موقف ہے, ان کا جو پیغام تھا وہ بھی ہم نے آپ تک پہنچایا. ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ K2 TV نے جو ہے وہ آپ کی بات کی, آپ کے حقوق کی بات کی. آج ہم نے آپ کی صحت کی بات کی, اور آپ لوگوں کو بھی یہی چاہیے, ہماری آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے اپنے چینل کے ذریعے کہ خدارہ اس کرونا کی جو وبا ہے اس کو سیریس لیں, اور اس پر جو ضلع انتظامیہ کی جانب سے بتائے گی جو ہدایات ہیں ان پر عمل پیرا ہوں, تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کرونا وبا سے چھٹکارا پا سکے. تو آج کے پروگرام حوالے راولپنڈی سے اپنے میزبان عاصم ریاض کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد.